Dr. Atim Banerjee. Now we're going to discuss about how to reduce abdominal fat or tuck your abdomen. For those clinical patient is coming with so many medical problems, and we would recommend for any exercises, like as walking or rest of the things or cardio exercises, or some patients are coming with spine problem, low back pain problem. For those patients, we are designing this treatment. It's an international tummy reduction treatment with soft tissue manipulation and manual therapy, and how to reduce waistline without exercise and strict diet in medical condition. You see this? Remove the tummy, around tummy muscles. So many muscles is here. And reason for to increase abdominal fat, there's so many reasons to increase abdominal fat. We will take care about it, and it's necessary to know the lymphatic system or lymphatic node around our tummy. When we will go to do tummy tucks or tummy treatment, then lymphatic system is more important. The first lymphatic system is inguinal, then paravertic, then hypogastrium. Got it? And it's a myokinetic chain, myofascial chain is included with this treatment. We will focus on superficial front line. It's a origin and landmark of superficial front line, superficial back line. It's just repeat things for you. Just rememorize yourself. It's a landmark, bony landmark, and myofascial tracts, and so many muscles is tracts going and in the tract, and deep front line and demarcation also, back functional line, and then we take the measurement. Then first we take the measurement and weight. Okay, then come my model. We are seeing the weight. You just note the weight. Now weight is 88.6. So Dr. Pradeep Roy. The body composition and the fat percentage and the rest of the things. Then please stand up. You can see the weight. Got it? And composition is there. Okay. Then please note down this. Please note down this. Then BMI is 31.5. Dr. Pradeep. BMI is 31.5. It's a high, and body composition, body fat is normal is 32.1, but it is showing high. Okay. How much is it? Very high. It's a normal is 32.1 according to his age, but it's showing high. Okay. But how much charges? We will make a note of it. 32.1. Fat percentage is 32.1. 32.1. Right. And water percent is 48.4. It's insufficient water intake. 41.4. Yes. What about the percentage? Percentage. And 16.97 basal metabolic rate, and visual fat scoring is 15. It's so high, and muscles is good, bone mass is good, and rest of the things is good. Okay, thank you very much. We check the before weight we check for patient. Then we did already BCA, body composition analysis. Got it? Then we go to check the tummy measurement. Okay, and we note down in our card also. तो पहले मैं क्या बताया था? नेवल मेजरमेंट above 3 inch, below 3 inch. Got it? Then अभी क्या करना है? पेशेंट को नॉर्मल रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल, नेक ऑल्सो नॉर्मल. डोंट डाउन द नेक. फॉरवर्ड नेक होगा तो पेट ज़्यादा आएगा. गॉट इट? ये आपका वेट का आपको लिखना है इधर में, वेट का, एंड इधर में आपको मेजरमेंट लिखना है. गॉट इट? एंड इधर में बॉडी कंपोजिशन लिखना है. द फॉर्मेट इज हियर.
तो हम लोग इधर में अभी जो आपका वेट आया, तो ये नोट डाउन द वेट अभी कितना है, आज मान लो टुडे इज 27 19 हाउ मच, देन वेट इज 88.6, गॉट इट। एंड नाउ अभी क्या करेंगे, हम लोग मेजरमेंट लेंगे, जो टमी का जो है, टमी का मेजरमेंट लेंगे, गॉट इट। तो मेजरमेंट सेंटीमीटर में लेना होता है, इन सेंटीमीटर। नाउ मेजरमेंट इज 109 in midline of tummy in navel area, okay, then above 3 inch, above 3 inch, it's a 107, and again below 3 inch, इट्स अकॉर्डिंग टू टमी, यू नो, इट्स अप टू डाउन। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो ये टमी के साथ ही आ जाएगा, ये जो बल्ज है। देन इट्स बिकेम 114, गॉट इट। तो ये पहले मैं ये असेसमेंट किया, मेजरमेंट लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एंटीरियर टिल्ट को देखेंगे एंड पोस्टीरियर टिल्ट को देखेंगे, ओके। द स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ इधर में देखना है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग इधर से भी चेक कर सकते हैं, इट्स एंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट, एंड इसके साथ साथ जैसे हम लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट एंड मैनुअल थेरेपिस्ट है, तो वी आर डूइंग जिलेट टेस्ट, तो हम लोग ये जो PSIS है, PSIS में हम लोग हैंड रखते हैं, एंड इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं, लेफ्ट लेग लिफ्ट करो, लेफ्ट लेग लिफ्ट करो, लेफ्ट पैर उठाओ पूरा पूरा, देन डाउन, अगेन अपोजिट, देन डाउन, ओके। तो आपका PSIS जो है, मैं बोला यहाँ पे जो आपका आइज़ है, ये आइज़ अप एंड डाउन होगा, ओके। तो यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं एंटीरियर टिल्ट है या पोस्टीरियर टिल्ट है। अदरवाइज हम लोग पेशेंट को लाइंग कर देंगे, उल्टा अब लेट जाओ, कीप योर बोथ हैंड बिसाइड योर बॉडी, योर फोरहेड शुड बी लाइक दैट, नो फोरहेड, गुड, तो इसमें चुन तक, देन यू कैन सी द लेग लेंथ, keep it your both finger on malleolus, close your eyes, you can feel the, you know, one leg is up and one leg is down, left leg is, you know, shorter and right leg is towards you, you know, it's bigger, now about half inch का difference है, heel आप चेक कर सकते हो। जब फिर इसको करेक्शन करना हो, तो करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और भी एक बार आप देखेंगे ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो फिर मैं उसको और भी छोटा कर रहा हूँ इसमें, देन पेल्विस से हम लोग यहाँ जब मूवमेंट करेंगे तो ये देखो ये और भी छोटा हो गया, गॉट इट। एंड फिर इसको हम लोग करेक्शन करेंगे, पेल्विस से, जो सैक्रम और पेल्विस जो एरिया है, यहाँ से हम लोग करेक्शन किए पहले। ये करेक्शन करने के बाद आप देखो लेग लेंथ तो उसका ठीक हो गया, सी पहले लेग लेंथ करेक्शन करना है तो स्ट्रक्चर करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेल्विक इम्बैलेंस रहेगा, दैट्स कोर मसल्स वीक होगा एंड इफेक्ट हो जाएगा, ओके, थैंक यू। फिर आप उल्टा लेट जाओ, देन सुपाइन। तो सुपाइन में हम लोग क्या किए, इधर से हम लोग देखे जो एंटीरियर टिल्ड है या पोस्टीरियर टिल्ड है, ओके। yesterday we already tell about anterior tilt and posterior tilt, just I repeat once, okay. This is a pelvis, it can affect on your tummy, okay. Then pelvis, it's a ilium, when ilium go forward, move downwards and again go inside, that's a anterior tilt, okay. When these things happened, then your hip will move, bigger hip, space बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड बिगर हिप आपको हो जाता है, गॉट इट। एंड ऑपोजिट उसका हम लोग जो देखेंगे तो उसमें हमको क्या करना है, पोस्टीरियर टिल्ट। तो ये जो स्पेस है जो आपका स्पाइनस प्रोसेस से PSIS, इसका फीस लेंथ बढ़ जाएगा एंड आइज़ जो डिम्पल है, PSIS का जो आइज़ आपका डिम्पल रहता है वो डिम्पल बड़ा हो जाएगा। एंटीरियर टिल्ट में ऑफ ओपन आइज़,
आइज ओपन, तो डिम्पल बड़ा हो गया। एंड पोस्टीरियर टिल्ट में क्या होता है, इज इट शिफ्टेड बैकवर्ड, गोइंग अपवर्ड एंड आउट फ्लेयर। तो ये आउट फ्लेयर अगर होगा तो ये बहुत, अगर इलियम आउट फ्लेयर होगा तो स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा टमी का, तो आप देखेंगे बिगर टमी। गॉट इट द पॉइंट? ओके, इसके ये करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो आइज़ है पीछे का PSIS जो है, PSIS क्लोज आइज़, कभी कभी किसी का नहीं भी मिल सकता है। देन ये कंडीशन होगा तो इट्स अ, जो हिप है पोस्टीरियर टिल्ट, तो हिप है ये फिर छोटा हो जाएगा, स्मॉल हिप। देन हम लोग जो हिप लिफ्टिंग सीखेंगे, हिप को बढ़ाने के लिए यू हैव टू करेक्ट पोस्टीरियर टिल्ट फर्स्ट। वो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है, क्योंकि फीमेल का ये एसेट है। अच्छा बटक्स अगर होगा फिर हम अच्छे से जाएंगे। गॉट इट, है ना? एवरी फीमेल नीड्स बटक, जैसे ही भी हो, अगर समझ में आता है तो। देन इसको पहले करेक्शन करना होता है एंड एंटीरियर टिल्ट को करेक्शन करना होता है। एंटीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर टिल्ट, इट्स स्पेसिफिकली एनाटॉमी के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एंड इट्स डायरेक्टली, मैं दिखाऊंगा, बट इट्स डायरेक्टली मॉनिटरिंग बाय रजिस्टर्ड मैनुअल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। गॉट इट? ओके, तो ये हम लोग एंटीरियर टिल्ट एंड पोस्टीरियर टिल्ट हम लोग कर लिए। करने के बाद क्योंकि टोटल बॉडी आपका इफेक्ट हो जाता है इसमें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट को प्रिपेयर कर लेंगे फॉर थेरेपी। देन हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्पोजेबल सीट, कभी भी आप काम करते हो तो डिस्पोजेबल सीट पूरा यूज़ करो। तो हम लोग डिस्पोजेबल सीट यूज़ करते हैं फॉर पीछे, जिधर में ऑयल वगैरह ना यूज़ हो जाए। ऑयल रेडी रखो, प्लीज डाउन। देन यू विल प्रिपेयर द क्लाइंट, एक्सपोज ओनली, जितना आपको चाहिए उतना ही एक्सपोज करो, जितना चाहिए। वो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पीविक निकल गया, हम क्या वो कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन पुल द मसल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, हाँ, तो आप पुल नहीं कर सकते। ओके, देन वी प्रिपेयर द पेशेंट लाइक दिस वे, जितना आपको लगेगा, जस्ट ऑफ दिस एंड यहाँ पे आप कर लिए। एंड उसका जो उसमें वी आर यूजिंग सम लुब्रिकेंटिंग थिंग्स, यू नो, लुब्रिकेंटिंग चाहिए स्किन के साथ वो मूवमेंट करने के लिए। एंड फिर हम लोग डिस्पोजेबल वो लगा दिए। गॉट इट? डबल। Prepared client and tail client, it's you just comfortable, become comfortable length. Then give G5. Everything. Then we are you know, get ready G5. We are get ready G5. It's a oil. It's a anti-celluloid oil. Got it? Anti-celluloid oil का means जो सेलुलाइट्स का मतलब फैट है। ओके, तो ये हम लोग जो काम करेंगे इससे वेट लॉस नहीं होता है। गॉट इट? इट्स नॉट इफेक्ट ऑन वेट लॉस और वो ये कैसे काम करता है, ये आपका जो आप फैट को लॉस किए, ये फैट लॉस करने के बाद जो अगेन रिफॉर्म होता है जो फैट वो एरिया, उसको होने नहीं देते, इससे प्रिवेंट करते हैं। इसमें हम लोग क्या देते हैं, द कंपोजिशन ऑफ ऑयल, जो आपका बेस ऑयल रहता है, आलमंड ऑयल रहता है, आपका फ्लेक्सीड ऑयल रहता है, एंड इसके साथ साथ जो मेन एक्सट्रैक्ट वर्जिन जो है वो इसमें, अदरवाइज साइप्रस ऑयल भी आप दे सकते हो। साइप्रस इज एंटी सेलुलाइट प्रॉपर्टीज़। एंड उसके ऊपर हम लोग क्या देते हैं, पैचुली देते हैं। पैचुली इज एक्सट्रैक्ट, एक पेड़ है जिसका बार्क से ये ऑयल तैयार होता है, एंड टू कॉस्टली। ओके, एंड हुडाई देते हैं। एंड इसका थोड़ा जो आपका ऑर्डर है, इट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ये एंटी स्ट्रेस के लिए काम करते हैं। पैचुली, जिन लोगों का बहुत स्ट्रेस है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपका क्लिनिक पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू नो, अमेजिंग, आपका एक डिफरेंट क्लिनिकल आपका ऑर्डर आता है। एंड इसके साथ साथ यूकैलिप्टस हम लोग यूज़ करते हैं फॉर उसका जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं। इट्स अंडर एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी स्टार्ट फ्रॉम योर चेस्ट, जो इजीली आपका नोज़ में जाए, एंड नोज़ में जाने के बाद क्या होता है, आप कम हो जाओ। ओके,
तो एक इसका भी इफेक्ट है। तो इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। गॉट इट अबाउट द क्लियर अबाउट द क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ओपन जो क्या आप काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या है इसमें। हाँ, तो ये एंड सेकेंड ऑफ ऑल देन इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गॉज देंगे एंड फिर पैक देंगे, विल कम स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, वी आर यूजिंग पाउडर, slimmer powder, thin slimmer powder you using. Everything thing is slimmer, आप अगर फूं भी मारोगे तो स्लिमिंग होना चाहिए। सब कुछ स्लिम होना चाहिए माइनस द बैंक अकाउंट। ओके, देन ये लुब्रिकेंटिंग है एंड इट्स अ G5। ओके, ये आपका G5 है, ग्रेटर 5, इट्स अ स्टिमुलेटर। ये स्टिमुलेटर भी इंफ्रारेड रेज निकलते हैं ना, तो फिर हम लोग का मसल स्ट्रक्चर हम लोग बोल दिए। देन विल स्टार्ट G5 विद दिस हॉट। ओके, 2 से 3 सेकेंड हम यहाँ किए, तो G5 टोटल कितना मिनट देना है, 15 मिनट G5 देना है। गॉट इट। देन यहाँ पे हम लोग किए, फिर विल फोकस ऑन रेक्टस एब्डोमिनिस 8 to 10 टाइम्स विथ जेंटल प्रेशर। जेंटल प्रेशर मैं क्या बताया था, 150 to 1 kg maximum, it's a gentle pressure। 8 to 10 times rectus abdominis and other rectus abdominis from pelvis to rectus abdominis पूरा। इट्स ये फैसिलिटेशन एंड इनिबिशन टेक्निक में बताया था आपका मसल्स का। देन वी आर स्ट्रेंथन द मसल्स। ओके, 8 to 10 times। then again come to centers, then we stimulate the thoracolumbar fascia, then we are moving the G5 towards thoracolumbar fascia। and this type with V shape। Okay, then we can move sideways also। Okay, 7 to 8 times। Then again I will come to centers and I will do both side, just slowly go that side and again bring with pressure, then gentle come and with pressure। The rectus abdominis, both rectus abdominis, it's a pushing and pulling technique। When you push, then it's with pressure, when you pull, it's no pressure। It stimulates the local superficial area and increase the circulation। You can see it's become red, it's become reddish, एंड रेडिस का मतलब आपका सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो टोटल बॉडी का जो सर्कुलेशन आपका टमी में आ जाता है। गॉट इट। हाँ, ये करने के बाद देन हम लोग ऑब्लिक में फोकस कर रहे हैं ऑलरेडी, thoracolumbar fascia। ओके, देन विल मूव दिस वे, हाँ, इट्स क्लॉकवाइज। Got it। After then again I am doing this halka, again push। When complete this, then we will go for drainage। It's a hypogastrium, slowly, very slowly, and it's superficially, it's towards inguinal and it's towards para-aortic। It's one side, again opposite side, it's hypogastrium, it's para-aortic and it's inguinal towards inguinal। Then again come this way, then we will move focus to lift the lower bulges and lower abdomen। Okay, then what I can do, I can come little bit upward towards the patient, then we just do this। Okay, it's a lifting your lower bulge and overlapping। This is the interesting things with shaping, it's a spot reduction treatment। with shaping you are focus on toning also। हाँ, जो इसमें क्या होता है,
आप अगर 5 इंच हम अगर टमी से लॉस करते हैं तो फिर आपको फर्मिंग करना पड़ता है, सैगिंग हो जाता है। बट ये जो टेक्निक है इट्स अ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड टेक्निक, जहाँ पे क्या आपका स्पॉट डिटेक्शन, वेट लॉस मैनेजमेंट और इसके साथ साथ टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग हो जाता है। हम अगर 3 इंच अगर लॉस करेंगे तो 3 इंच टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग हो जाएगा, है? और नहीं तो वेट लॉस करने के बाद क्या होता है, सैगिंग, रिंकल्स, टमी सैगिंग हो गया। तो जो प्रोसीड्यूर्स हम लोग दिखा रहे हैं अथिन्स परमानेंट वेट लॉस, उसमें ये सैगिंग ग्लो और बढ़ेगा, फ्लो कम नहीं होता। गॉट इट? देन ये हम लोग पूरा किए। करने के बाद यू नो द फिश का जो स्पाइन होता है, देन वी आर मूविंग लाइक दिस, फिश का स्पाइन 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिसका जैसा टमी है 3 1 2 3। गॉट इट? व्हेन कंप्लीट 3 things together, then we will move focus on drainage. We will go to for drainage, hypogastrium, para-aortic, again inguinal. Same things you will do other side. Got it? Then after this the stimulator. तो स्टिमुलेटर कैसे काम करता है हम लोग ऑलरेडी बोल दिए। तो और भी जब मैं सर्कुलेशन किया, यहाँ सर्कुलेशन लोकल, यू कैन सी द वार्म आपको फील हो रहा है। तो जब मैं सर्कुलेशन किया तो पूरा बॉडी से आपका ब्लड इधर में आ गया। जब ब्लड इधर में आया तो सर्कुलेशन और भी बढ़ेगा, यहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तब वाटर प्रेशर भी बढ़ता है। जब वाटर प्रेशर बढ़ता है देन किडनी स्टिमुलेट इटसेल्फ। जब किडनी स्टिमुलेट होता है तो किडनी का टॉप में रहता है एड्रेनलिन आपका ग्लैंड। ये एड्रेनल जो ग्लैंड है इट स्टिमुलेट, एंड इससे क्या होता है, एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। ये एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेशन होने के बाद केमिकल चेंजेस शुरू होते जाता है। ये फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगेन ब्रेक होता है, देन इट्स बिकम CMP, साइक्लिक ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 3 से 1 आया। गॉट इट? 1 आने के बाद अगेन जो मोनोफॉस्फेट है ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लाइपेज एंजाइम निकलता है। यू नो इट्स अ फैट ब्रेकेबल एंजाइम। ये फैट ब्रेकेबल एंजाइम है, ये आपका थ्रू ब्लड चलाया एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में आने के बाद फिर एडिपोज टिश्यू में फैट है, मॉलिक्यूल है, फैट्स मेड एक ग्लिसरॉल 3 फ्री फैटी एसिड, देखिए आपका फैट रहता है उधर में। ओके तो ये जो आपका 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फ्री फैटी एसिड है, ये फिर क्या करते हैं आपका अलग कर देते हैं। ये फिर अलग कर देते हैं। गॉट इट? जब ये अलग हो गया तो ये 3 फ्री फैटी एसिड चला आया ब्लड में एज ए एनर्जी के रूप में। ओके जब 3 फ्री फैटी एसिड आपका आ गया तब इसका 2 कंपोजिशन होता है। कोई भी चीज़ एक केमिकल कंपाउंड जब तैयार होता है तो उसका एक न्यूट्रिएंट पार्ट होता है, एक नॉन न्यूट्रिएंट पार्ट होता है। गॉट इट? ये न्यूट्रिएंट पार्ट जो है ये थ्रू ग्लोमेरुलस रीएब्जॉर्ब होता है फॉर बॉडी यूज, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपका H2O, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ये थ्रू हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम जो सिखाए, ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये निकल आया यूरिन से। ठीक है, ये यूरिन से निकल आया। एंड जब हम लोग नेगेटिव कैलोरी बैलेंस करते हैं, यानी बॉडी में हम लोग कैलोरी का डेफिसिट करते हैं, जैसे 500 डिडक्ट किए या 1000 डिडक्ट किए, ये सिखाया ना हम लोगों को क्लिनिकल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू फूड एक्सचेंज लिस्ट, तब आपको बॉडी को कम मिलता है। कम मिलने के बाद जो वो डेफिसिट जब होता है वही जो आपके एनर्जी और फैट है इट्स यूटिलाइज टू एनर्जी, एंड जहाँ पे आपका वेट लॉस होता है। एंड जब आपका सेल और एडिपोज टिश्यू से आपका फैट रिडक्शन होगा तो क्या होगा, सेल का साइज कम होगा जिसमें आपका स्पॉट रिडक्शन होगा। एंड हम लोग मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन से क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रिदमिक मैनर में इसको पुल कर रहे हैं। पुल करने के लिए क्या हुआ, देखो मसल्स टोन्ड हो गया। यू कैन सी जस्ट मैं G5 दिया और कुछ दिया नहीं, पहले जो मसल्स था एंड अभी में टोन्ड आ गया। हाँ तो आप जो ट्रीटमेंट करोगे उसमें वेट लॉस एंड शेपिंग का ट्रीटमेंट के साथ साथ टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग फ्री है विथ अ प्रॉपर टेक्निक। Got it? Then we'll go for soft tissue manipulation technique with lymphatic drainage. Soft tissue manipulation technique
with lymphatic drainage. That's why I use anticellular oil. I use anticellular oil. Do now manipulation with anticellular oil. And somebody tell me, the step of manipulation, and according to that we are doing. And the pores are already closed. Got it? तो इसके लिए हम लोग बिफोर स्टार्टिंग भी कर सकते हैं एंड आफ्टर स्टार्टिंग भी ये हम लोग कर सकते हैं बीच में. तो फिर हम लोग टॉवल को हम लोग गर्म किए माइक्रो ओवन में, फिर हम लोग इसको स्लोली दे दिया. फर्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच. इट्स डीप हीट, heavy color. You are feeling, wow, it's very pleasant things. You can keep it for 2 minutes. It's good for local penetration. And you just wash the things, wash किए हम लोग, जो पाउडर्स हम लोग दिए उसको हम लोग wash कर लिए. Everything should be hygienic, you have to follow the international standard. Okay, ये किए. ये करने के बाद फिर क्या हमको करना है, देन हम लोग सेंसेशन किए. एक हमको बोलते हैं जो स्टेप बाय स्टेप के बाद स्टेप क्या होगा. देन आई विल शो क्लियरली द टेक्निक शुड बी प्रॉपर. हाँ, तो एट फर्स्ट व्हाट यू विल डू, हम लोग G5 दिए, लोकल एरिया को तैयार कर लिए हम लोग फॉर ट्रीटमेंट. ऑलरेडी यू कैन फील हीट जनरेशन आपका हो गया. तो इसकी ये करने के बाद आप देखो टमी का टोन देखो. पहले जो यहाँ लटका हुआ था, इट्स सैगिंग वो था, तो उसमें जो था, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑयल को यूज़ करेंगे. उससे पहले सेंसेशन देंगे. ये करने के दौरान बात नहीं करेंगे, गप नहीं करेंगे क्लाइंट के साथ. गॉट इट? देन ब्रेन शुड नो इट्स अ मोटर कंट्रोल टेक्निक. ब्रेन को रीएडुकेट करना पड़ता है जो ये मसल्स टोन नहीं है. ओके, तो फिर जो आप कॉन्टेक्टाइल टच आप देंगे तो वो ब्रेन को एडुकेशन होगा. एंड विदाउट नॉलेज योर टमी इज स्टक्ड. गॉट इट? गुड. Then first up prepare the client, we will start with sensation, very soft sensation. We are prepared, we are doing something, then we are taking oil. First we are taking the anticellular properties oil, and don't give directly. Then we are moving our hand and it's become warmth. ये जब हो जाता है पहले, फिर उसके बाद इट्स ऑयल एप्लीकेशन ऑफ द टमी. देन इट्स ऑयल एप्लीकेशन ऑन द टमी. यहाँ पे कर लिए. देन थोड़ा सा और ऑयल लिए. सी द नेक्स्ट effleurage gliding with oil. देन फिर इसको क्या करेंगे, इट्स ऑयल एप्लीकेशन हुआ. देन एफ्लूरेज का मतलब थोड़ा सा हम प्रेशर से करेंगे. ये नियर अबाउट 1.5 to 2 kg आपका प्रेशर आएगा. Then we are doing alternate pump sliding in sideways. Alternate pump sliding. Oblique area to axilla. Okay, oblique 5 to 7 times. To axilla towards 5 to 7 times. Palm lifting on the oblique area towards TFL. Okay, then हम लोग फिर करेंगे थोड़ा को लंबा फेशिया को एक्टिवेट करेंगे. ऑब्लिक एरिया से हम लोग टुवर्ड्स थोड़ा को लंबा फेशिया. देन वी आर कमिंग लाइक दैट. देन वी आर डूइंग टुवर्ड्स थोड़ा को लंबा फेशिया. टुवर्ड्स थोड़ा को लंबा फेशिया. टुवर्ड्स थोड़ा को लंबा फेशिया. दिस वे एंड अगेन दिस वे. थोड़ा को लंबा फेशिया को हम लोग एक्टिवेट कर दिए. गॉट इट? Then palm pressure towards oblique. It's a deep pressure. Come from here. ये upper aspect of iliac crest, superior aspect of iliac crest. तो फिर हम लोग इधर में प्रेशर किए till inguinal region. Okay. Okay, मैं फिर deep pressure दिया. Next. Kneading
kneading on the oblique, catch my hand. हाँ, kneading on the oblique, catch my hand. Catch my hand, needle तो oblique को pull करना है, हाँ? Internal oblique, external oblique. We are pulling like that, you know, half moon. We are pulling like that. We are pulling like that, and pulling like that. Okay. In this side same also, pulling like that, pulling like that. Okay. Oblique, kneading. It's called kneading. Release and activate superficial front line. Okay, then it's a superficial front line goes from here, then it's a release and activate technique. Release का मतलब if any dysfunction in the line, then you can release first and then activate also, you know. When you release, then it should be, you know, vice versa. You start the rectus abdominis जो है, इधर से आप क्या किए, ये एंगुलो 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 में पुल किए, देखो, come this way, with this way, again this way angle, it's a release. Okay, then when you activate, you take the, you know, rectus abdominis and you just do this. Muscles fibers जो है, जैसे गिटार मूवमेंट करते हैं, गिटार बजाते हैं, then अब rectus abdominis के ऊपर establish the origin and you just activate the things. You can activate this way and you can activate by clap also. It's a gentle things and good for, you know, clients और अब जैसे वो करते हैं, otherwise हम लोग करते हैं इसको activation अगर करते हैं, it's a rhythmic activation. Activation release technique दिखाए and activation technique also. Do cupping, okay, ऐसे नहीं लगना चाहिए, then it's a 7 to 8 times. Okay, then I activate the superficial front line, BFL. and I activate the BFL, back superficial line, from toes, you know. Then superficial line, मैंने क्या बताया था, लाइनिंग का कहीं भी ऑरिजिन इंसर्शन और वो कहीं से भी आप पूरा लाइन के ऊपर काम कर सकते हो. ओके, तो देन ये सुपरफिशियल बैक लाइन है, तो सुपरफिशियल बैक लाइन पहले मैं लेग को लिफ्ट किया, यू जस्ट सी द टमी चेंजेस, यू जस्ट वॉच देयर, गॉट इट. देन यहाँ से मैं प्रेशर दिया, आने के बाद देन डाउनवर्ड्स गया एंड टूवर्ड्स काफ तक मैं गया, अगेन टू डाउनवर्ड्स and towards cuff, again it's downwards towards cuff. Okay, देखो toning, देखो, you just see the tone of abdomen. So we are releasing into the back line. Yeah, superficial back line. Okay, So here is toning and increase. yeah, then again opposite leg, got it. Here superficial front line and superficial back line जब release किए, then we will release the psoas muscles, got it. Psoas is a deep extensors muscles, जो कि जितना भी लो बैक पेन पेशेंट है एंड एंटीरियर टेल्ड, हाँ So flexor muscle. हाँ ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इसको हम लोग ये अगर शॉर्ट हो जाएगा तो आपका क्या होता है, इट्स कनेक्टेड विथ एकदम आपका एडेक्टर तक, तब पुल हो जाएंगे आप ऑलरेडी, यू नो, फ्लेक्स हो जाएंगे, दैट्स ऑलरेडी फ्लेक्सस. एंड इसका दो फाइबर्स होता है, हाँ, एक सॉस मेजर होता है एंड सॉस माइनर होता है. वी वर्क ऑन सॉस मेजर, माइनर उतना पैल्पेशन में नहीं आता. तो इसके बाद हमको सॉस का जो डिमार्केशन करना है, जो सॉस का कहाँ से आप करेंगे, एंड हैंड्स में भी आप डिमार्क ऑलरेडी. तो इसमें हम लोग देखेंगे जो रेक्टस एब्डोमिन, अगर लेग को मैं लिफ्ट करता हूँ, उठाओ, हाँ, यू नो यू कैन पैल्पेट द दिस. अदरवाइज हम लोग जो देखेंगे इसको मिड लाइन करेंगे, क्लियर. ये करने के बाद फिर यहाँ पे आपका एक विंडो आ जाता है, इफ़ यू सी, फिर यहाँ थोड़ा कॉलम ऑफ फिशियर टू, ये अगर आप करते हो तो यू नो इट्स लाइक एज विंडो.
आया। तो फिर हम यहाँ से भी मिड लाइन से भी एक लाइन कर सकते हैं। ये करने के बाद ये जो लाइन आया, इसका जो हम लोग नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ से घुसा सकते हैं, यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं स्लोली, इट विल टेक 10 मिनट्स। बट उससे भी अच्छा हमको क्या करना होता है, ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस का जो बल्ज है, इसके नीचे से हमको घुसना है सॉस में। देन हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनली यहाँ से आपका ऐसे नॉर्मल हैंड मेजरमेंट, यहाँ से हम लोग 4 इंच एंड यहाँ से 3 इंच, ये हम लोग सॉस का मेजरमेंट करेंगे। गॉट इट द पॉइंट? सॉस को कॉन्ट्रैक्शन करा के भी फील कर सकते हैं। हाँ, वो तो कर सकते हैं, बट योर physiotherapist you can do that, everybody can do that, it's should be easy or no for everybody। and then हम लोग इधर से शुरू करेंगे, द विंडो से, एंड विंडो से हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 घुसेंगे। कैसे घुसेंगे? when client doing exhaling then we'll push slowly, okay? normal inhale and exhale, normal, it's normal, extra कुछ नहीं करना है। when exhaling then enter, when exhaling then enter, you know rectus जो abdominis है, इसके अंदर से मैं घुस गया, rectus abdominis, you know after entering, after some time you can feel the tenderness of psoas muscles। अगर पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो एक पिलो और कुछ मैं नीज के नीचे दे सकता हूँ, एंड जब फ्लेक्स हो जाएगा तो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट पेनफुल। मैं छोड़ना नहीं है। देन यू जस्ट पुश, यू आर ऑलरेडी रिच, देन पुश, यू आर ऑलरेडी रिच, एंड देन पुश नाउ। तो ये मैं पुश कर लिया ऑलरेडी। देखो ये एरिया से या एरिया से आपका आईओ एंड ईओ रहता है, इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल ऑब्लिक। फिर मैं ऑलरेडी अंदर चला गया, एंड यू कैन पैल्पेट द यू नो एब्डोमिनल पल्स रेट आपको फील होगा। जो आर्टरी गया वो आर्टरी का पल्स फील होगा आपको यहाँ से। गॉट इट? जब ये गए, ये जाने के बाद टूवर्ड्स फाइबर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे। 1 2 exhale, when exhale I'll instruct to client 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, 7 to 8 times is enough। then हड़क से छोड़ना नहीं है, then slowly release। then you can see the tummy structure, ये decrease हुआ ना, कैन चेंज। ये जो हाँ हम लोग इधर से इधर में काम किए, इधर आप है रिब्स दिखने लगा। एंड देखो यहाँ का और यहाँ का मिनिमम 3 to 5 इंच का वो होना चाहिए। गॉट इट? एंड फिर हम लोग इलियाकस को करेंगे और भी डिफरेंस आएगा। इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच, यू नो साइंटिफिक चीज़ होना चाहिए। देन इधर से हमको ASIS है, एंड धीरे धीरे हम लोग अंदर घुसेंगे। देन इलियाकस रिलीज, यू नो स्कूपिंग, धीरे धीरे स्कूप करते हुए घुसेंगे। ओके, इलियाकस ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वो रजिस्ट कर रहे हैं। इट्स लिटिल बिट पेनफुल बट डोंट वरी अबाउट इट। क्लाइंट को एक हेडफोन दे दो और गाना सुनने बोलो। गॉट इट? गाना सुनो अच्छे से, झूमते झूमते आपका टमी कम हो जाएगा। हम लोग कंप्लीट किए, देन लिटिल बिट धीरे धीरे इसको छोड़ दिए। देन यू जस्ट सी द डिफरेंस, यू कैन सी। अब ऊपर की तरफ जाओ, यू कैन सी द चेंजेस। टोनिंग भी देखो, एंड द कॉन्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्यूरिंग। कंट्यूर हो गया, अंदर टक हो गया। पहले ये रिब केज कहाँ था, यहाँ से इतना था आपका उनका टमी, अभी क्या आ गया, नीचे आ गया, रिब केज ऊपर उठ गया। गॉट इट? ये जब आपका कंप्लीट हो गया, देन वी आर डूइंग चाइनीज बैंगल। हाँ, देन चाइनीज बैंगल, देन वी आर डूइंग चाइनीज बैंगल। सेम थिंग्स वी आर डूइंग अदर साइड। देन अगेन वी आर स्टार्टिंग, दैट हम लोग क्या करेंगे, वी आर डूइंग चाइनीज बैंगल। You do press, you know, it's a turn up. Okay, it's so near about 5 to 7 times. Then
lymphatic drainage. Then we will focus on lymphatic drainage. We will release the soft tissues and deep also, and we are activating the line also. Then उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, lymphatic drainage. Then we go slowly like this way, and we come this way and just push and release. You know, 1, 2, 3, 4, 5, release. Got it? हाँ, इंगुइनल रिलीज किया. फिर हम लोग क्या करेंगे, इट्स अ पैराओटिक में हम लोग रिलीज करते हैं. इट्स अ रेक्टस एब्डोमिनिस का बीच में आए जहाँ एंडिंग है, ये देखो हाथ में रेक्टस एब्डोमिनिस आ रहा है. इट्स अ 90 डिग्री. पहले इंगुइनल पुशिंग आपका 45 डिग्री था, ये 90 डिग्री. जस्ट पुश करके छोड़ दो. देन अगेन विल गो जिफाइड प्रोसेस, कम हियर एंड रिब केज का जो स्ट्रक्चर यहाँ से होते हुए देन विल फोकस ऑन हाइपोगैस्ट्रम ड्रेनेज. इसके बीच में हमको विजुअल मैनिपुलेशन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपका लीवर ये अगर लीवर है, ये जो हम लोग किए तो सेम टाइम हम लोग उधर में भी करेंगे. गॉट इट? एंड ये करने के बाद जो लीवर है, लीवर का डिमार्केशन हम लोग लाइनिंग का पता है ऑलरेडी, एब्डोमिनल लाइनिंग. तो हम लोग ये जो अबव लाइन जो ये जो कॉन्ड्रियम जो है, ये कॉन्ड्रियम एंड ये लंबर आपका पार्ट है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैंड को यहाँ प्लेस करेंगे. ओके, हाँ, यहाँ प्लेस करने के बाद हम हैंड को ऐसे रखेंगे. लीवर का क्या होता है, ये यहाँ से आपका आके इधर तक पूरा लीवर है. गॉट इट? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लीवर का जो एंगल है, ये एंगल को फील करेंगे. थोड़ा सा लेके जाओ, कुछ नहीं बोल रहा है, इंस्ट्रक्ट नहीं करना है. थोड़ा सा लेके जाने के बाद देखो कि आपको रेजिस्ट कर रहे हैं अंदर में. जैसे थेराबैंड ये सब देते हैं ना, तो थेराबैंड जाते जाते एक जगह फिर वो रिफ्लेक्शन देते हैं, रेजिस्ट करते हैं. जब रजिस्ट्रेशन आया, दैट्स अ डीप फॉशा लाइन. डीप फॉशा, हाँ, डीप फॉशा के बाद थोड़ा सा और आप अगर डीप प्रेशर देते हो, देन जब वो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, फिर आपका हैंड में पैल्पेशन में आ जाता है आपका लीवर. गॉट इट? तो हम लोग क्या करेंगे, लीवर को जब वो एक्सेल करेंगे, देन लीवर को विल डाउन्स, ओके, एंटीरियर एंड सुपीरियर पुल करेंगे. और यहाँ पुल करके रखेंगे. जस्ट अगेन एक्सेल, थोड़ा सा करने के बाद फिर मैं पुल किया. होल्ड इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे वंस इन अ वीक. हाँ, तो लीवर जैसे मूवमेंट अगर नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर इनका मूवमेंट हुआ है, अगर इमोबिलाइज है, उसके कारण टमी भी बढ़ सकता है एंड फैटी लीवर भी इसमें बहुत असरदार है. ओके, ये करने के बाद हम लोग नॉमिनल लगे. ये आपका मानो जिनका कॉन्स्टिपेशन है और ये सब है, तो इट्स असेंडिंग कोलोन, हाँ, इट्स अ ट्रांसवर्स कोलोन एंड इट्स अ डिसेंडिंग कोलोन. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जिफाइड का मिड लाइन है, जिफाइड का मिड लाइन से हम लोग आएंगे एंड पैल्पेट करेंगे. थोड़ा सा 2 इंच आगे जाएंगे. हाँ, जाने के बाद आपको मिल जाएगा जो ट्रांसवर्स कोलोन. ओके, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप पुश करना है, ये डायरेक्शन में पुश करना है. अगर डायरिया है, हाँ, जो लूज मोशन है, तो इधर में पुश करना है. ओके, तो हमको अगर कॉन्स्टिपेशन है, देन विल डू दिस. जस्ट स्टिमुलेट 7 to 8 टाइम्स. फिर ज़्यादा नहीं करना है. ये आपका हो गया ट्रांसवर्स कोलोन. एंड फिर इधर में हम आएंगे, ये जो विंडो है, विंडो का यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे. थोड़ा सा पैल्पेशन करने से फिर विथ आईओ एंड ईओ आपको मिल जाएगा एक पाइप जैसा मिलेगा. यू नो, हाँ, जो सॉफ्ट पाइप जैसा मिलेगा. ये एकदम चिपका हुआ रहता है, ये 4 पेपर जैसा. तो ये चिपका हुआ रहता है आपका ये आई और ईओ के साथ. तो यहाँ आने के बाद आपको फिल करना है, थोड़ा सा इन करना है, एंड यू जस्ट डू दिस. कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों का है, एंड यू नो विथ टमी टक्स यू कैन डू दिस ऑल्सो. IBS में भी कर सकते हो. ओके, ये आप किए. फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों का सिग्मोइड कोलोन में आपका रहता है. यू नो, द मैक्सिमम हम लोग देखेंगे जो कॉन्स्टिपेटेड, जितना लॉन्ग एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड है, तो सिग्मोइड कोलोन आपका है. तो ये हम लोग डिसेंडिंग कोलोन में आए एंड सिग्मोइड कोलोन इधर से निकलता है. देन हम लोग धीरे से इसको वो करेंगे. करने के बाद यू कैन फील इट. सब पैल्पेशन चाहिए, फील करने का टेक्निक वो होना चाहिए. व्हेन आई फील इट, थोड़ा सा स्कूप करके आप अंदर में जाओ. देन वी आर फीलिंग लाइक यू नो द लाइक हम लोग एक पाइप जैसा फील किया.
देन उसको स्टिमुलेट करो अंदर की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स ओके ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिपेशन और it's a depend on the condition, but you can attach with your treatment also, you know, it's a holistic treatment. नहीं भी रहेगा तो आप कर सकते हो. It's periostatic जो movements वगैरह जो अभी है it become good. एंड जिन लोगों का कोलाइटिस का प्रॉब्लम है तो और भी बहुत पेशेंट आएंगे आपका गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर ये सब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है. ओके देन ये सब जब हो गया देन आवर मेजर ऑर्गन इज स्प्लीन. Spleen measure the lymphatic system spleen. You have to drainage the spleen also. Okay then हम क्या करेंगे spleen के लिए यहाँ पे एक हैंड को हम लोग रख देंगे एंगल में और हाथ को ऐसे रखेंगे यू नो. फिर ये जब हैंड आएगा then you just moving this and ये धीरे धीरे आने के बाद देखो हैंड का पोजीशन ये पुलिंग लाइक दैट एंड ड्रेन द स्प्लीन. ठीक है ये जस्ट 5 to 6 टाइम्स आपको करना है ड्रेन करना है. एंड ड्रेन इज लाइक हाउ इट्स नॉट पुशिंग इट्स रोटेटिंग एंड पुशिंग इट्स रोटेटिंग एंड पुशिंग. एक हाथ आपका स्टिल है स्टेबलाइज्ड है दूसरा हाथ रोटेटिंग एंड पुशिंग रोटेटिंग एंड पुशिंग रोटेटिंग एंड पुशिंग rotating and pushing rotating and pushing. See how much is inside it. Rotating and pushing rotating and pushing rotating and pushing. Thank you very much. Then again we are doing Chinese bangle. Then clockwise and anti-clockwise. सर इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों पे डिपेंड करेगा क्या ये मेथड. हाँ तो हम लोग क्लॉकवाइज किए एंटी क्लॉकवाइज हो गया. नेक्स्ट ओके सेम मैं अपोजिट साइड में कर दिया. फिर मैं क्या ऑब्लिक टू इंगुइनल अगेन इंगुइनल ड्रेनेज ओके देन पैराओटिक ड्रेनेज एंड अगेन then effleurage. Core muscle strengthening. Okay then core muscles strengthening is very important you know. तो हम लोगों का जो भी पेशेंट आएंगे तो उनको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करना है. व्हाट इज द पॉइंट. तो हम लोग क्या करेंगे वॉच एक्सरसाइज करेंगे फॉर कोर मसल स्टेबिलिटी. तो यू जस्ट थिंक इट्स अ यू नो इट्स अ वॉच ओके इट्स अ 12 इट्स अ 6 इट्स अ 9 इट्स अ 3. then you just keep your hand like this. You just keep your hand like this. Got it. And you just ask to client just आपको सोच के करना है. इट्स अ मोटर कंट्रोल एडुकेशन. हम लोग कंट्रोल का एक्सरसाइज करते हैं ब्रेन को एडुकेट करते हैं. हम जब बोलेंगे क्लोज योर आइज हम जब बोलेंगे इसको पुल करने के लिए एंड आपको टेक्टाइल टच देंगे आप उसी की तरह पुल करेंगे. गॉट इट. देन क्लोज योर आइज. थैंक यू. एंड इट्स अ 6 प्लीज़ 6 से आप पेट को टमी को पुल करो एंड 12 तक लेके जाओ. पेट फूलाना नहीं है 6 से पेट को 12 तक लेके जाना है. खींचो अंदर से पेट को अंदर से पुल कर. हाँ यू जस्ट फील इट. देखो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. जस्ट होल्ड हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 12 to 9 ब्रिंग 12 to 9 यहाँ पे लेके आओ टमी को अंदर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पेट को फुलाना नहीं है. अगेन आपका 9 टू टमी को लेके जाओ ऐसे फुलाना नहीं है नॉर्मल. पेट को फुलाना नहीं है. आप जस्ट फील करो गुड मोटर कंट्रोल. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जहाँ पे टेक्टाइल टच देंगे वहाँ पे ब्रेन वॉक करेगा. एंड अगेन 12 to 9 ओके अगेन 9 to 6 6 to 3 6 to 9 एंड 9 to 6 अगेन 6 to 12. तो ऐसे आपको करना है. छोड़ो नॉर्मल रखो नॉर्मल टमी नॉर्मल करो हवा छोड़ो. ओके देन यू कैन सी द चेंजेस. देन हम लोग क्या करेंगे मोटर कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे. यू नो 3D एनिमेशन आपको पता है. हाँ तो हम लोग क्लाइंट को एक्सरसाइज नहीं करना है फिजिकली. तो हम लोग बोलेंगे आप सोचो रिवर्स क्रंचेस करो. हम लोग क्या कर सकते हैं उसका फ़ोटो रख सकते हैं. फीडबैक विजुअल कॉर्टेक्स में फीडबैक आएगा. फ़ोटो रख के बोलेंगे अभी सोचो आप ये कर रहे हो यू नो.
दैट क्लोनिंग एक्सरसाइज, इमेज एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं ना. देन क्लोज योर आइज एंड यू कैन फील योर नी बेंड लाइक 45 डिग्री and you just pull towards your tummy and release. Okay, close your eyes and feel it. Okay, and वो जब फील हम जब काउंटिंग करेंगे, मैं टमी में हाथ रखूँगा, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बट मोटर कंट्रोल के कारण उसका टमी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. यू नो, जस्ट वन, पैर को लेके जाओ धीरे धीरे. गुड. सी, यू कैन सी दिस. 2, they are expertise, they know about it. 3, good, it's already contracted. 4, तो ऐसे करके आप क्या करेंगे 7 to 8 times into 3 times only, not more. आप every 3 hours में दे सकते हो. हाँ, अदरवाइज वो जो पहले हम लोग करते थे 15 करके आप करो इतना टाइम, वो नहीं करना है. 7 to 8 times एक्स मसल्स को काम करने से इनफ है. ठीक है, ये हो सकता है. एंड नंबर 3, टी एक्टिवेशन आप कर सकते हो. टी एक्टिवेशन में बेंड योर नीज लाइक दैट इन 45 डिग्री एंगल, दो बोथ नीज, both knees, you just keep it like this, hand straight, hand को straight कर दिए. it's a unstable condition. हम इधर में इसको रेजिस्ट करेंगे और आपको रेजिस्ट करना है. ठीक है, जाने नहीं देना है. अभी कहाँ कैसे मूवमेंट करेंगे दे डोंट नो. कोर मसल्स देखो, कोर मसल्स ऑलरेडी स्टार्टिंग में रेजिस्ट, जाने नहीं देना है. हाथ को ऐसे रखो, टाइट रखो, जाने नहीं देना है. देन उसको पता भी नहीं हम क्या करेगा, यू नो, अनस्टेबल. तो ब्रेन को पता नहीं, स्ट्रेटिंग विद ब्रेन एंड आपका कोर मसल्स एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो है, हाँ, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा. यू कैन सी टमी में आप अगर हैंड रखते हो, देन इट्स नो. ओके, देन ये करने के बाद रिलीज, रिलीज एंड एक्टिवेट सुपरफिशियल, डीप सुपरफिशियल. ओके, देन अगेन हम लोग रिलीज करेंगे एंड इसको एक्टिवेट करेंगे सुपरफिशियल फ्रंट लाइन एंड सुपरफिशियल लाइन. एंड विल हाउ विल एक्टिवेट द डीप फ्रंट लाइन. तो डीप फ्रंट लाइन में नी को आपको बेंड करना है, बेंड योर नीज. थैंक यू. देन यू कैन कोई पिलोज और एंड वो भी आप रख सकते नहीं, बेंड योर नीज एंड दोनों पिलो आप ऐसे रखो. डीप लाइनिंग स्टार्ट फ्रॉम योर एडक्टर टू टिल योर पेक्टोरल्स, यू नो. एंड ये आने के बाद आप प्रेस करके रखो, प्रेस करके रखो एंड डू द सेम. इट्स अ टेक्निक ऑन रिलीज एंड इट्स अ टेक्निक. ये हो गया. ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर मेल क्लाइंट होगा तो इसको हम लोग होल्ड करके, अगर मेल क्लाइंट होगा वी जस्ट डू क्लैपिंग इन पेक्टोरल्स. ओके, नहीं तो फीमेल क्लाइंट अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे जस्ट यहाँ स्टेबल करो एंड इसको यहाँ से स्टेबल करो एंड क्लैप योर ओन सेल्फ, क्लैप करो, क्लैप इट. एंड वो करते रहेंगे. हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे अच्छे से मारो. ओके, इट्स अ सुपरफिशियल फ्रंट लाइन एंड सुपरफिशियल डीप फ्रंट लाइन वी आर एक्टिवेटिंग. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट, हाँ, ये next again we are doing drainage. Again drainage we are doing. Got it? हाँ, ड्रेनेज करने के बाद कभी कभी किसी लोगों का क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम होता है एंड ये सब का प्रॉब्लम होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, यूरिनरी ग्लैंड को फुल क्लियर कर देंगे. कोई जानबूझ के नहीं जाते हैं क्योंकि जाने से फिर वेट लॉस हो जाएगा, यू नो. वो लोगों को पता है जो यूरिन से फैट निकलता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोग जब भी ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को बोलेंगे प्लीज़ गो टू वॉशरूम एंड वॉशरूम के बाद ही सेशन देंगे. देन यू जस्ट टेक योर वेट, क्योंकि अगर यूरिनरी ग्लैंड में 750 तक नॉर्मल यूरिन रहता है, 450 to 750 ग्राम. अगर मान लो वो यूरिन नहीं किए तो फिर आप अगर उस मसल्स पंपिंग कर रहे हैं तो मसल्स पंपिंग करने से मोर यूरिन क्रिएट होगा एंड मोर यूरिन क्रिएट होगा तो ब्लैडर फुल होगा, तो ब्लैडर ओवरस्टेज होगा. ये ब्लैडर ओवरस्टेज के कारण इन फ्यूचर इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है. अदरवाइज आप अगर अगेन ड्रेनेज करेंगे तो फिर रप्चर हो सकता है उधर में. तो वो उनको समझाना है जो आप जो कर रहे हैं, अगर यूरिन इधर भी नहीं करेंगे तो घर में जाके करेंगे. अगर घर में जाके करेंगे तो नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका वेट लॉस करके ऐसे ही आएंगे. मे बी आप 1 kg वेट लॉस किए बट 1 kg में 100 ग्राम फैट गया, 900 ग्राम आपका गया वाटर. गॉट इट. एंड जब डाइट फॉलो करेंगे फिर वो करके तो 100 ग्राम अगर फैट से लॉस करते हैं तो हम लोग इधर में क्या देखेंगे, 100 ग्राम इंटू 9 तो 900 किलो कैलोरी मैं बर्न आउट किया यहाँ पे, जो एक्सरसाइज करके भी हम नहीं कर सकते. गॉट इट द पॉइंट. तो पेशेंट को वो क्लियर
करके बोलना है. देन वी ऑलरेडी डन लिम्फेटिक सिस्टम. एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच का मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से 3 इंच का मेजरमेंट लेंगे. एंड द यूरिनरी ग्लैंड सिचुएटेड हियर. अगर यूरिन नहीं भी जाते हैं, यू जस्ट डू लाइक दैट, डू लाइक दैट एंड डायरेक्टली 90 डिग्री थोड़ा सा डीप में जाओ एंड स्टार्ट पुशिंग. तो तुरंत यूरिन निकल आएगा विदिन सेकेंड. लग रहा है आपको यूरिन? गुड, थैंक यू. यानी काम अच्छे से किया. हाँ, 2 मिनट फिर होल्ड नहीं कर सकेंगे. ओके, अभी यूरिन जाएंगे, इसका थोड़ा और स्टेप में 10 मिनट बाद जाएंगे. थोड़ा देर बाद. गुड. तो ये हम लोग किए. इसके बाद ये टोटल प्रोसेस, टोटल मैनिपुलेशन, विजुअल मैनिपुलेशन एंड सो मेनी द स्टैंडर्ड साइंटिफिक ट्रीटमेंट आई इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस टमी. गॉट इट. देन विल गो फॉर टोनिंग, मुंह टोनिंग है जो हम लोग क्या यहाँ पर करते हैं. गो सेपिंग विथ वेट लॉस, टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग, फ्री. गॉट इट. तो हम लोग अगर ये जो टोनिंग जो ओवरलैप होता है, लूज हो जाता है स्किन, तो इसमें लूज नहीं होता है. ओके. तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब लूज नहीं होता है तो हम लोग पहले इसको फिर मेजरमेंट वाइज, फिर इट्स अ गॉज जो वो करने के लिए. तो हम लोग क्या किए, इसको ऐसे करके पहले मेजरमेंट ले लेंगे. कितना? तो ये मेजरमेंट ले लिया. मेजरमेंट लेने के बाद इसको हम लोग काट दिए. और करो, क्योंकि जिन लोगों का हेयर रहेगा टमी में, देन पहले थोड़ा सा आप ऑयल दे देना, अदरवाइज कभी कभी ये पुल हो सकता है. देन थोड़ा सा ऑयल देखो, फिर स्टिकी नहीं होगा. देन मैं इसको पहले दे दिया. देने के बाद अपोजिट साइड ये डाउन करके उसको मैं इनसाइड में किया. ये डाउन करने के बाद इधर में किया. ओके. इधर में जब किए, देन आई विल गो टू दिस साइड एंड क्लाइंट को हम लोग बोले जो पुल योर एब्डोमेन डाउनवर्ड्स, ये हम लोग किए, इसको पकड़े एंड पुल योर एब्डोमेन, अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ. एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल एंड पुल, एक्सेल एंड पुल. गुड. देखो करने के बाद साइडवेज में पुल कर दिया. गिव मी 1 मोर. थैंक यू. एंड इधर में भी सेम करने के बाद फिर ये मैं ऐसे रख दिया. ओके. ये करने के बाद फिर इधर से मैं पहले फिंगर को घुसाया, फिर टाइट करते हुए इसमें निकल आया ऐसे. ओके. इन दैट साइड ऑल्सो सेम. गॉट इट. इधर में किया तो एब्डोमेन जब अंदर में घुसेगा तो क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा. जितना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्रेन को हैबिचुअल एक वो मिलेगा जो हमको हर वक्त टक करके रहना है. इट्स अ बायो फीडबैक. हाँ, मोटर कंट्रोल में बायो फीडबैक आपका होता है. ब्रेन को हमको मूवमेंट करना है. ये करने के बाद देन वी आर यूजिंग Athens. We are using the Athens it's a herbal medicinal pack. Okay. It's made by it's a minerals, 9 minerals से ये तैयार होता है. एंड इसके साथ साथ ये एक अच्छा पैक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं फॉर जो हीट है, हीट जनरेशन होगा. थर्मो हर्ब्स, देन हीट जनरेशन होगा. देन ये हीट जनरेशन उनका फिर जैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा, अंदर का जितना भी हीट हम लोग क्रिएट किए वो पुल करके बाहर में लेके आएगा. एंड ये जब टाइट होगा, टाइट होने के बाद क्या होगा, ये मसल्स को और भी अंदर कंप्रेस करेगा. स्टिच करते हैं तो जितना भी कंप्रेस करेगा मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्टेड. एंड जितना लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट होकर रहेगा, मसल्स फाइबर बिल्ड होता है, कोलाजन फाइबर बिल्ड होता है, इलास्टिजिन फाइबर बिल्ड होता है एंड मसल्स बिकम टाइटनिंग, टोनिंग, फॉर्मिंग. काम ऐसे करते हैं. ओके. एंड आई इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट, डोंट मूव योर सेल्फ. खांसना वो सब नहीं करना ये टाइम में. एंड आँख भी हिलाना नहीं है. रिसर्च में और उसमें देखा गया एविडेंस में, और आँख भी हिलाते हो योर स्पाइन इज मूविंग. तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर पैक
फट जाएगा एंड यू आर नॉट गेटिंग टाइटनिंग टोनिंग फॉर्मिंग, इट्स हैम्पर्ड. Amount of salt जो near about 5 ग्राम to 7.5 ग्राम हम लोग सॉल्ट दे दिए. इट्स अ सॉल्ट. द पैक इज स्टैंडर्ड इज 400 ग्राम. अगर ज़्यादा टमी और भी ज़्यादा होगा तो ये 750 तक आप दे सकते हो. एंड इट्स अ नॉर्मल आपका वाटर. तो एक इसमें हम लोग क्या करेंगे, 200 to 225 ml हम लोग वाटर देंगे. कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है. तो जब आपका एक्सपर्टाइज्ड आएगा तो फिर आप कर सकते हो. गॉट इट. तो फिर हम लोग क्या किए, इसको धीरे धीरे देंगे एंड इसको हम लोग मेल्ट करेंगे हैंड में. जस्ट गिव दैट, यू नो. हमको अगर इसमें हो गया तो इसमें नियर अबाउट 200 में मेरा हो गया काम. एक टाइम बिंग में आपको जल्दी जल्दी लगाना है, अदरवाइज ये टाइट हो जाएगा. गॉट इट. फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, वही इंसर्शन ऑरिजिन एंड इसके साथ साथ मायोकाइनेटिक चेन को फॉलो करेंगे. गॉट इट. प्लीज कीप इट हियर, समबॉडी विल टेक. हाँ, तो ये करने के बाद मैं क्या किया, जो ASIS से हम लोग क्या किया, इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक को पहले कवर किया. गॉट इट. ये करने के बाद फिर हम लोग अपोजिट में भी सेम वी आर डूइंग क्रॉस. ओके. फिर हम लोग पहले ये कर लिया, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूजिंग हर्बल मेडिसिनल पैक. गॉट इट. तो ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देन जो थोरैकोलम्बो फॉसा टूवर्ड्स थोरैकोलम्बो फॉसा की तरफ ड्रेनेज करेंगे और उसको मूव करेंगे. पहले ये सीधा कर दिए, फिर ये एंगल में ऐसे लगा दिए. ओके. फिर पहले मैं क्या करूँगा, इसको सीधा लेके आया एंड देन नेक्स्ट मैं वी शेप में इसको ऐसे लेके आया. गॉट इट. फिर अब थोड़ा सा उसको वो ना हो तो अच्छे से मूवमेंट कर दिए. क्लियर है यहाँ तक. देन नाउ प्लीज अरेंज वन मोर टॉवल. Please arrange one more white towel. Got it. Then हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग रेक्टस एब्डोमिनिस को दोनों तरफ से हम लोग जैसे बांध देते हैं तो वैसे बांध दिए. ओके. ये जब हम लोग किए तो सब कंप्लीट हो गया. देन रेक्टस एब्डोमिनिस को नीचे से ऊपर पुल कर दिया एंड मेरा टास्क खत्म हुआ. इट विल कीप इट फॉर 15 मिनट्स. ये जब 15 मिनट्स में आपका हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर टॉवल जो है, ओके, टॉवल जो है, फिर एक टॉवल हम लोग ऊपर से स्लो करके दे देंगे ना, ऐसे ऐसे दे देंगे फॉर हीट ना निकल जाए. गॉट इट. यू जस्ट कीप इट फॉर 15 मिनट्स. तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ये सब लेके. देन आई विल सी आफ्टर 15 मिनट्स हाउ टू रिमूवल एंड हाउ इफेक्ट इज दिस. ये जब हो गया, ये कीप इट फॉर नियर अबाउट 15 मिनट्स. फिर यू कैन फील द वार्मथ इज देयर एंड व्हेन आई ओपन दिस यू कैन सी all the pack is it's pulling toward downwards. कोई पकड़ के है, compression करके है, you can feel it and it's become harder also. Okay. Then what I'll ask to client, then pull your abdomen and push your abdomen. Pull your abdomen inside and push your abdomen inside. Pull and so it's a little bit getting resistance and release and pull and release. Good. When this you just crash the pack, then what I'll do, and I'll do this. Yeah, and we have crashed the the packs. Then again, what I'll do like that. It's roll out and it through the dustbin. You can see the healthy tone of the tummy, and then again we will go to do according to client comfortable length
It's tolerable, sir? Thank you. And we are giving deep heat. We are giving deep heat. A little bit compress, and then we are rotating that things. And तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद वॉश कर दें. डोंट एकदम लाइट, डोंट पुश. जैसा हम लोग तैयार किए तो अपोजिट वो वे में आप पुल नहीं करना है. Got it? तो ये जब हो गया, then again we will go for drainage. Again we will go for one more drainage. Explain here, and then repetitive things. Same we are following this like that. Ready to run? Ready to run? Yes. Yes. Thank you. Okay, it's complete the scientific approach, Athens approach of tummy tucks, reduction of tummy treatment. We don't strain the patient. It's very pleasant, you know. अब यहाँ पे सो जाओ और टमी लॉस करके जाओ. Then after this, we'll send client to washroom, and then we'll check the weight and also check the measurement. Toned of muscles, जो sagging था उनका, ये curve देखो. You can see this curve. Okay, and this also, and reeve to this also. Got it? Then we will take weight. Come. Then 88.6 था, तो we lose 300 grams in spot. Okay? तो फिर टोन्ड हुआ, हम लोग वेट लॉस के 88.6 था, तो अभी 88.3 हुआ. ओके, 300 ग्राम वी लूज इन ट्रीटमेंट. ये अगर और भी हम लोग प्रॉपर करेंगे तो इसमें 1 kg तक लॉस हो सकता है. 1 kg. ओके, थैंक यू. नाउ हम लोग देखते हैं जो कहाँ से लॉस हुआ. देन स्टेप इन प्लीज. नेक्स्ट स्ट्रेट. इसमें 88.9 था. ओके, इसमें 88.9 था. देन अभी देखो BMI इज 31.3. लिखो BMI इज 31.3. बाद में विल एसेस, यू नो. देन बॉडी फैट परसेंटेज इज 32.1. then water is 48.4, basal metabolism 1691, and visceral fat is 15, and muscle length is good, bone mass is good, ये सब ठीक है. then progress 0.4 kg. 400 ग्राम का पहले जो हम लोग किए थे, इनका बॉडी में 400 ग्राम का प्रोग्रेस दिखा रहा है इधर में. एंड कंपेयर टू यू नो 98 एज का थोड़ा सा 49 पॉइंट वो दिखा रहा है. एंड प्रोग्रेस देखो थोड़ा सा डिफरेंस प्रोग्रेस दिखा रहा है. 128 ग्राम फैट का दिखा रहा है एंड 8.53. ओके, देन कंपोजिशन में जैसे हम लोग देखिए बॉडी का डिफरेंस क्या आया, वो है 31.5. आपका 88.9 से 88.6 था, यानी 300 ग्राम्स वेट में डिफरेंस आया. BMI आया 31.5 टू 31.3. देखो वेट कम हुआ तो BMI में डिफरेंस आया. इधर में 32.1 है. फैट परसेंटेज में डिफरेंट फूड गैप और हाँ, क्योंकि आज पूरी वगैरह ज़्यादा वो था तो वो ऐड हुआ, क्योंकि 2 आवर्स के अंदर ऐड होता है ना, दैट्स वाई इट्स नॉट सोज. ओके, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करने के लिए आपको मिनिमम 2 आवर्स का फूड गैप चाहिए. गॉट इट. और क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे फैट परसेंटेज का चेंज नहीं है. यहाँ पे फैट परसेंटेज शो हुआ, बट रेस्ट ऑफ द टाइम ये फैट परसेंटेज नियर अबाउट 100 ग्राम 200 ग्राम का डिफरेंट दिखता है. क्यों नहीं दिखा ये मैं बताया. ओके, एंड H2O 41 आपका 4 है. ये देखो और एक चीज़ देखो 41.4 आपका वो उसका क्या था, वाटर परसेंटेज था. वाटर परसेंटेज बढ़ा, इनसफिशिएंट ऑफ वाटर है, आई थिंक पानी नहीं पिए बड़ी से 48.4 हो गया. तो ये वेट और भी लॉस हो सकता था. इस गोज अप. ओके, एंड BMR 16 समथिंग था, अभी 16.91, एंड विजुअल फैट 15 एंड 15. ठीक है, तो ये अभी आपका टोटल चेंजेस है. अभी उनको
फिर मेजरमेंट हम लोग लेंगे, क्या डिफरेंस आता है। ओके, देन नेवल पॉइंट जो है नॉर्मल आप लोग को रखना है। अभी 107 है। 109 था। ओके, 1 minute. ऊपर चढ़ गया। ओके ओके, देन मिड पॉइंट इज अभी आगे टकेट दिया तो मिड पॉइंट जो मेजरमेंट हम लोग लेंगे, देन मिड पॉइंट अभी शोइंग नियर अबाउट 107, गॉट इट, 2 सेंटीमीटर्स डिफरेंट इन बिटवीन। एंड फिर हम लोग ये नेवल पॉइंट में, एंड फिर हम लोग ऊपर में देख रहे हैं, देन ऊपर में 3 इंच ऊपर में हम लोग अगर देखते हैं तो अभी 101 107 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस, गॉट इट। इट्स अ शेपिंग ट्रीटमेंट यू नो। एंड फिर 3 इंच नीचे हम लोग लेंगे मेजरमेंट, वन 114, तो 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ओके, अभी हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। जो सच में कुछ भी कम नहीं किया, जस्ट आपको दिखाया। आई वोंट यूज माय टेक्निक, जस्ट टेक्निक दिखाया। 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जब आया हम लोगों का मेजरमेंट में डिफरेंस, मोबाइल प्लीज वो करके कैलकुलेटर देखिए एक बार कैसे दिखाना है। एंड जो इंच लॉस हम लोग किए, गॉट इट। देन इसके साइड पे कहाँ से कितना देखो, मेजरमेंट कहाँ लिखा, मेजरमेंट ये वेट मेजरमेंट दिखाओ। ये ओके ओके ओके, देन अभी क्या हुआ कि पिन। ओके, अभी सी पहले क्या था, 107 था ऊपर में, तो इधर से आया 101, तो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लॉस किए। ओके, देन 6 सेंटीमीटर आपका डिवाइडेड बाय, ठीक है, हम लोग 6 क्या सेंटीमीटर लॉस किए, डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू 2.4 इंच हम लोग लॉस किए, 2.4 इंच लॉस किए टमी के ऊपर से, 2.4 इंच। ओके, देन 109 टू 107, तो यहाँ से हम लोग 2 सेंटीमीटर लॉस किए। ओके, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू आपका 0.8 इंच। ओके, 1 इंच से थोड़ा कम है, इधर से हम लोग लॉस किए। एंड फिर हम लोग क्या किए, ये 114 था लोअर जो एब्डोमेन है, देन 114 टू हाँ, तो नियर अबाउट 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड देन 7 से डिवाइडेड बाय 2.5, देन नियर अबाउट 2.8 इंच लॉस किए। ओके, इन 1 सिटिंग्स। एंड टोटल अगर लॉस करते हैं तो 2.8 प्लस 0.8 ओके प्लस 2.4, ये इंच में है, गुड, गॉट इट, इक्वल टू 6 इंच हम लोग लॉस किए इन 1 सिटिंग। एंड इक्वल टू अभी एवरेज लॉस देखेंगे, जो टोटल एक एवरेज लॉस डिवाइडेड बाय 3 एरिया से लिया, इन 2 इंच लॉस किए ये एवरेजली। जो इनका वेर इज ही कम, इनका तो एक है जो इंडिविजुअल एरिया का मैं दिखाया, जो यहाँ से इतना लॉस किया, एंड फिर 6 इंच टोटल लॉस किया, एंड फिर एवरेजली वो 2 इंच लॉस किया इंस्टेंट विद इन 45 मिनट्स। ओके, फीडबैक लेंगे जो ये ट्रीटमेंट लिए, तो ट्रीटमेंट में कैसा उनका फीलिंग्स हुआ, एंड टमी रिडक्शन से उनको कैसा लगता है डॉक्टर प्रदीप को। पहले लूज लग रहा था, अभी तो पूरा टाइट लग रहा है और बेटर फील लग रहा है, मोर बेटर। ओके, एंड टाइटनिंग डूइंग ऑफ कोर्स है, टाइट एंड ट्रेनिंग ऐसा लग रहा है ट्रीटमेंट बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग देखे ऑलरेडी कैसे एक इंटरनेशनल ट्रीटमेंट करके आप टमी को रिडक्शन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।